Clear? When solid changes into the liquid, then even we heat, there will no increase in the temperature. So the latent diffusion we consider, and even we heat the liquid and it starts to boil. After heating, there is no increase in the temperature, then we will say that the latent heat of vaporization is considered. Clear? You will write the answer for any substance. Why does the temperature remains constant during the change of state? This is because the two things. First one is the latent heat of fusion, and second one is the latent heat of vaporization. Clear? And after all, we heat the any substance at its melting point. The rest of the heat are considered as the hidden heat. There will be no any increase in the temperature. Clear? And similarly, when a substance starts to boil at its boiling point, even we heat, then there will be no any increase in the heat will supply to break the intermolecular force of attraction. Clear? So in this way you can write the answer of this question. Clear? Now come on, we have to consider the next question. That is the question number 2. Suggest a method to liquefy. Suggest a method to liquefy atmospheric gases. This is the question. You have to suggest the method. You know very well that the gases are involved in the process of the condensation by the two methods. The first method is the by increasing pressure, and second one is the by decreasing temperature. Clear? So here we can liquefy the atmospheric gases either by increasing the pressure or decreasing the temperature. Clear? So only one method are given. So you will write here, we can liquefy the atmospheric gases by increasing pressure, or you can also write by decreasing the temperature. Clear? हेलो एवरीवन, हम लोगों को ये कुछ क्वेश्चंस देखना है. क्लियर है ना? ये क्वेश्चन आपको इंडेक्स क्वेश्चन में दिया गया है. इसका क्या रीजन होगा आपसे एग्जाम में पूछा गया था. क्या इसका आपको आंसर लिखना है, यहाँ से आप समझ जाओगे. क्लियर है ना? ये सारा जो क्वेश्चन दिया गया है इवापोरेशन पर बेस्ड है. क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन मेनली ये सब क्वेश्चन जो है इवापोरेशन पर ही बेस्ड है. ठीक है ना? चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डज अ डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे. इसका मतलब ये है कि जब अगर बहुत ज्यादा हॉट है डे, या बहुत ज्यादा गर्मी जिस दिन डिजर्ट में रहता है उस दिन वहां बहुत ज्यादा ठंडी भी पड़ती है. ठीक है ना? तो इसके पीछे आपको रीजन बताना है ऐसा क्यों होता है. क्लियर? तो डिजर्ट में आप जानते हो सैंड होता है. डिजर्ट में क्या होता है? सैंड. और सैंड जो होता है एक गुड एब्जॉर्बर है. हीट को वो बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है, और जितनी तेजी से वो एब्जॉर्ब करता है उतनी ही तेजी से वो उसको इमिट भी करता है. जैसे अगर हम एक आयरन रॉड को, ठीक है, अगर एक आयरन रॉड को हम कुछ समय के लिए सनलाइट के कांटेक्ट में रख देते हैं तो वो बहुत तेजी से हीट हो जाता है इन कंपैरिजन टू अ वुड. अगर किसी लकड़ी को और आयरन को अगर हम रख दें तो दोनों में सबसे तेजी से जो हीट होगा वो आयरन होगा. यानी आयरन क्यों हीट हो गया? क्योंकि वो सनलाइट को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है और उतनी ही तेजी से उसको इमिट भी करता है. क्लियर? तो ऐसे ही अगर हम सैंड की बात करते हैं तो सैंड जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का और गुड इमिटर होता है हीट का. यानी जो एक गुड एब्जॉर्बर होता है वो एक गुड इमिटर भी होता है. यानी हॉट ड्राई डे में डिजर्ट कूलर कूल इसलिए हो जा रहा है क्योंकि सनलाइट डे टाइम में बहुत ज्यादा सनलाइट फॉल हो रहा है
सैंड उतने ही तेजी से हीट हो रहा है, ठीक है ना। और जितनी तेजी से सैंड हीट होगा उतने ही तेजी से इवापोरेशन प्रोसेस होगा, क्लियर है ना। और जैसे ही नाइट होता है वो इवापोरेशन प्रोसेस धीरे धीरे तेज हो जाएगा और जो यहाँ पर ये डिजर्ट है या डिजर्ट एरिया जो है वो कूल होता चला जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर रीजन आप लिखोगे कि डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे बिकॉज we know very well that the sand is a good absorber and good emitter of heat, clear. So during the daytime the sand will absorb all the heat from the sunlight and it will emit its heat during the night. So we can say here that desert cooler cool better on a hot dry day, clear. Or you can say here जैसे आप ड्राई डे जितना ही ज्यादा मौसम ड्राई रहेगा उसमें वाटर वेपर उतना ही कम होगा तो इवापोरेशन उतने ही ज्यादा वहां पर यानी रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, दूसरे सेंस में आप लिख सकते हो, क्लियर है ना। यानी सैंड इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड इट विल एब्जॉर्ब द हीट एंड द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन विल बी मोर, क्लियर क्लियर। एंड दैट्स व्हाई the desert cooler cool better on a hot dry day. तो इस सेंस में आप इसको समझा सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है हाउ डज द वाटर केप्ट इन अ अर्दन पॉट मटका जिसको हम कहते हैं बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। जैसे अभी जो इस जनरेशन में हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं लेकिन पहले के लोग जो यूज करते थे उनका रेफ्रिजरेटर जो था वो अर्दन पॉट जिसको हम मटका कहते हैं वो था, ठीक है ना। तो मटके में अगर हम वाटर को रखते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन, स्पेशली समर सीजन में मटके में जो पानी को रखा जाता है वाटर को रखा जाता है वो कूल रहता है, ठंडा रहता है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो अर्दन पॉट है जिसको हम मटका कह रहे हैं उसमें माइन्यूट होल्स होते हैं, वेरी फाइन पोर होता है, क्लियर है ना। और जैसे ही मटके में हम वाटर को रखते हैं और जब सनलाइट उस पर फॉल होता है अर्दन पॉट पर तो उसमें रखा गया जो वाटर है वो इवापोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और वो वेपर के फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है और वो वेपर जो है उस अर्दन पॉट के जो माइन्यूट होल्स हैं उसके थ्रू निकलना शुरू कर देते हैं, क्लियर। और जैसे ही इवापोरेशन होगा तुरंत वो कूल होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इवापोरेशन जो होगा वो सरफेस पर होगा। जैसे ही इवापोरेशन होना शुरू हो जाएगा मॉलिक्यूल्स दूर जाना शुरू कर देंगे और इवापोरेशन की वजह से जो सरफेस है वो ठंडा होता चला जाएगा, क्लियर है ना, समझ में आया। तो आप यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे मैं एक बार बता दे रहा हूँ। Why does the water kept in a earthen pot or मटका becomes cool during the summer? आप लिखोगे this is because in case of earthen pot there is a very fine or minute holes are present in it and when the sunlight falls on the earthen pot then the water molecule kept inside it involved in the process of evaporation and the vapor will comes into the atmosphere from its minute hole or pore. So we can say that due to evaporation the water kept in the earthen pot becomes cool during the summer season, clear. So this is the reason for this question, ठीक है ना। इसमें माइन्यूट होल है, पोर है जिससे वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में चले जा रहे हैं या इवापोरेशन में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और उसी के वजह से वो कूल हो जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर आपको दिया गया है why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? आप बेसिकली ऑब्जर्व किए होंगे कि जब भी अगर फ्यू ड्रॉप ऑफ पेट्रोल या फ्यू ड्रॉप ऑफ एसीटोन, एसीटोन एक कंपाउंड है, ठीक है ना, और यहाँ पर परफ्यूम, तीन चीजों को लेकर पूछा गया है, ठीक है ना। एसीटोन को, परफ्यूम को और पेट्रोल को अगर हम अपने हथेली पर रखते हैं तो वो हमारा जो पाम है वो धीरे धीरे ठंडा होना, हमको फीलिंग होने लगती है कि ठंडा हो गया हमारा पाम, ठीक है ना। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ये जितने भी सब्सटेंस है, चाहे एसीटोन है, चाहे पेट्रोल है, चाहे ये परफ्यूम है, ये सब वोलाटाइल
परफ्यूम या वोलाटाइल लिक्विड्स हैं। क्लियर है ना? और जो वोलाटाइल होते हैं वो रैपिडली इन्वॉल्व होते हैं इवापोरेशन में। क्लियर? तो इवापोरेशन में इन्वॉल्व होने की वजह से ये हमारे जल से ही हम अपने इसको हाथ में रखते हैं, यह हमें कूलिंग इफेक्ट इसका जो फील होना है वो शुरू हो जाता है। ठीक है ना? यानी इसका रीजन आप क्या लिखोगे कि वी फील कोल्ड व्हेन वी पुट द एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट, और वी फील कूल ऑन आवर palm when we put some acetone or petrol or perfume on it, because these all are the volatile liquids. Clear? Due to its volatile nature, it involves in the process of evaporation, and that's why we feel cool when we put on it on our palm. यही रीजन आप लिखकर छोड़ दोगे। ठीक है ना? वोलाटाइल नेचर है और इन्वॉल्व हो रहा है इवापोरेशन में। आइए 4th नंबर पॉइंट में दिया गया है, व्हाई आर वी एबल टू सीप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर रादर देन कप। जैसे कहा यह जा रहा है कि अगर हमें एक प्लेट में चाय दे दिया जाए और एक कप में चाय दे दिया जाए, तो दोनों में से कौन जल्दी ठंडा होगा? तो आप जान रहे हो कि जो हॉट टी है यानी गर्म जो चाय है या जो दूध है वो अगर प्लेट में होगा तो प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और अगर कप में होगा तो कप का सरफेस एरिया कम होगा। और आपको पता है कि इवापोरेशन के लिए सरफेस एरिया का ज्यादा होना बहुत ही जरूरी है। तो सरफेस एरिया जितना ही बड़ा होगा, ज्यादा होगा, उतने ही इवापोरेशन तेजी से होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर रीजन आप लिखोगे कि वी आर एबल टू सीप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम द सॉसर rather than a cup, because in case of saucer the surface area is very high. Clear? Due to the greater surface area of the saucer, the process of evaporation occurs rapidly, but in case of the cup the surface area is very low. Clear? So the evaporation process occur not very rapidly, it will occur slowly. Clear? So we can say that we are able to sip the hot tea or milk faster from the saucer rather than a cup. इसका रीजन आप ये लेकर छोड़ दोगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट इसमें दिया है व्हाट टाइप ऑफ द क्लॉथ्स शुड वी वियर इन समर सीजन। जैसे अगर हम समर सीजन में जितने कलरफुल क्लॉथ अगर हम पहनते हैं उतने ही ज्यादा हमें गर्मी या हीट का फीलिंग होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम समर सीजन में बहुत ही लाइट कपड़े, कलर्ड कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट टाइप ऑफ द क्लॉथ्स वी वियर इन समर सीजन, तो स्पेशली कॉटन क्लॉथ, वी वियर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग द समर सीजन। ठीक है ना?